ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो ये है डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द concept of marketing is of evolutionary nature and with the passage of time and has undergone many changes. Here we shall discuss some of the marketing concept prevailing at different stages of economic development. From the first till now present date मार्केट कॉन्सेप्ट में बहुत चेंजेस हुए हैं। इससे इंडस्ट्रियल वर्क में भी काफ़ी स्मूथनेस आया है। अब फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। दिस इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग प्रिवेलिंग एट द इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। In the initial stage of economic development, demand of unsatisfied want are in abundance, but there is shortage of goods. Because of shortage of resources, it is not possible to increase the production overnight. Whatever is produced is sold out without much marketing efforts. What is needed is to concentrate on production and its distribution and not on marketing. More emphasis on production and less on marketing is known as production oriented concept of marketing. सो यहाँ पे जो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो फर्स्ट स्टेज पे आता है। प्रोडक्शन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्पफुल है, पर क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन कम है और डिमांड का प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड उस प्रोडक्ट का ज़्यादा है, तो फर्स्ट कंपनी को जो प्रोडक्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि सेल तो स्मूथली हो ही रहा है विदाउट किसी मार्केटिंग एफर्ट के। तो फिर कंपनी को प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब जो सेकंड जो है वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग विच puts much emphasis on the product. If the product is of good quality, attractive and durable, it can automatically be sold out. What is needed is to take care of the quality of the product and create a good image in the mind of the consumer about product. Here it is believed that quality of the product will take care of everything, but in ignorance of changing preference, taste, custom and fashion of the consumer. As a result, adoption of this product concept of marketing may succeed long run. It may be not succeed because it ignores consumer changing preference, taste and fashion. Example, many fountain pen manufacturing company fail in spite of good quality because they ignore changing preference of consumer towards ball pen. This indicates that the innovation are not introduced in the product. Even a standard product may fail to meet the target of the sale. So second concept जो है मार्केटिंग इवोल्यूशन में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट सेकेंड स्टेज पे आता है। अगर जो प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का हो, एज वेल एज अट्रैक्टिव एज वेल एज ड्यूरेबिलिटी भी साथ में हो, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में आसानी से बिक जाएगा। बट अगर मार्केट में कोई अलग ट्रेंड शुरू हो जाए या फिर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाए, तो फिर कंपनी को भी अपना प्रोडक्ट उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो उस प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी। एग्जाम्पल में भी दिया गया है कि फाउंटेन पेन की क्वालिटी तो अच्छी है, पर उन्होंने जो ब्रांड जो अपना कंज्यूमर टेस्ट जो है वो स्टडी नहीं किया, इसलिए वो उसका जो सेल था वो दिन ब दिन घटता चला गया, इसलिए उस प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट था वो भी कम होता गया। इसलिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बिजनेस में बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड जो है सेलिंग कॉन्सेप्ट है। सेलिंग कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज marketing puts much emphasis on selling efforts. One or two good quality of the product are highlighted by the aggressive advertising campaign or product is made popular. Aggressive salesmen are employed, direct discount and gift coupon are offered, and in this way demand is artificially created. Even efforts is made to brainwash the customers and boost up sale. This approach may succeed for short period of time but not for long run, because consumers do not seek product, they seek satisfaction of their wants. Therefore, for succeeding, what is essential is to take care of changing needs of consumer and product accordingly. तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में कंपनी की प्रोडक्ट सेलिंग पे
ध्यान देना चाहिए। सेलिंग कॉन्सेप्ट पे डिफरेंट टाइप्स की एडवर्टाइजिंग देते हैं। उस प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। कंपनी का जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है या फिर उस सेल्स कोई सेल्समैन अपॉइंट करते हैं या फिर उस प्रोडक्ट में डिस्काउंट या गिफ्ट कूपन भी दिए जाते हैं जिससे मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ सके। पर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही एडवांटेजेस है, पर लॉन्ग टर्म पीरियड जो डिमांड चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए तो वो कंज्यूमर के लिए सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। उससे ही वो डिमांड, उसका सेल भी बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगा। जो फोर्थ पॉइंट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन विच all the department and employees of the enterprise are expected to become marketing oriented. Only production of product or selling effort are not emphasized. Emphasis is also not on selling what we have, but main stress is laid on satisfaction of to consumer and profit for the company. Each and every department and individual of the organization has to keep in mind the interest of the enterprise as well as the interest of the consumer. This modern concept of marketing based on the following two pillars. मतलब ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, अगर कोई बिजनेस को मार्केट में टिके रहना है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, उस मार्केट को अच्छे से पता होना चाहिए कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो दो मोटो है वो है कंज्यूमर को सेटिस्फाई रखना और प्रॉफिट मेंटेन रखना। यहाँ पे भी वो यही दो सब पॉइंट्स दिए गए हैं। वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के जो दो सब पॉइंट्स है वो है कंज्यूमर ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड प्रॉफिटेबल सेल्स। जो कंज्यूमर ओरिएंटेड एटीट्यूड है उसका वो मैं रीड करूंगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बिलीव्स दैट कंज्यूमर इज and should be the focal point of the business activities. Instead of making brainwash efforts for selling what the producer has, study of changing needs and preference of the consumer should be made, and accordingly a product which can satisfy the needs of the consumer should be manufactured. Consumer satisfaction should be given utmost importance for becoming consumer oriented. A business enterprise should bear in mind the following points. मतलब ये जो है यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, इसलिए मार्केट में जो चेंजिंग नीड्स हो, जो कंज्यूमर जो चेंजिंग नीड्स होगी और चेंजिंग फैशन वो स्टडी करते रहना है कंपनी को। उस हिसाब से ही वो कंपनी अपना प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करेगा तो वो प्रोडक्ट एकदम लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकेगा मार्केट में। इससे कंज्यूमर भी सेटिस्फाई रहेगा और उससे प्रोडक्ट की सेल भी मेंटेन रहेगी। या फिर ये यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, कंपनी को ध्यान देना चाहिए उस पॉइंट पे। जो मैं रीड करता हूँ, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, वी आर नॉट हिज बॉस बट ही इज आवर बॉस। कस्टमर जो है वो मेन बॉस है, ना कि जो कंपनी। सो जब प्रोडक्ट बनेगा वो भी कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को ही लेके बनेगा। सेकेंड जो पॉइंट है, कंज्यूमर शुड बी गिवन हाईएस्ट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। हमेशा कंज्यूमर डिमांड को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, बिजनेस एंटरप्राइज शुड बी लुक एट from the viewpoint of consumer so that we can know his expectation and satisfy them. Business enterprise को consumer टेस्ट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट का जो डिसीजन लेना है वो लेना चाहिए एज पर कंज्यूमर टेस्ट। जो फोर्थ पॉइंट है, टू नो चेंजिंग नीड्स ऑफ द कंज्यूमर मार्केट रिसर्च शुड बी अंडरटेक फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्रोडक्शन शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स। टाइम टू टाइम जो मार्केटिंग फैशन जो बदल रहा है वो कंपनी को स्टडी करते रहना है, क्योंकि रहना चाहिए, क्योंकि और कंज्यूमर का टेस्ट कंज्यूमर है, टेस्ट बदल तो नहीं। कंपनी को ये देखना है कि कंज्यूमर का टेस्ट बदल तो नहीं गया। सो टाइमली रिसर्च भी कंपनी को करते रहना चाहिए। फिर जो पॉइंट है, सर्विस आफ्टर सेल शुड बी प्रोवाइडेड इफ नेसेसरी। मतलब अगर जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया उसका सेल हो गया, बाद में
कंज्यूमर को कोई एरर या कुछ डिफेक्ट उस प्रोडक्ट में निकला, तो कंज्यूमर जो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर का जो एरर है वो सॉल्व करे। इसलिए कई प्रोडक्ट्स में भी ऐसा दिया होगा कि कहीं पे लिखा होगा कि कस्टमर केयर नंबर, तो वो कंज्यूमर का एक बेनिफिट है कि वो डायरेक्टली जो कंपनी है उनके कस्टमर केयर पे वो डाउट अपने या एरर जो भी है वो शेयर कर सकता है। बाद में ये जो पॉइंट है सेल विथ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, वो मैं रीड करता हूँ। नो डाउट कस्टमर शुड बी टेकन ड्यू केयर ऑफ, but at the same time we shall not forget that any business enterprise is not a charitable institute. Basically it comes into existence for making profit, therefore sales should be profitable. Without profit no firm can exist for a long period, and if the sale is to be made profitable we have to make the study of changing social economic environment and its impact on demand. Accordingly innovation should be introduced in the product or a new product shall be developed so that we can satisfy the changing needs of the customer. In short, modern concept of marketing says that sale transaction should be mutually advantageous. अब ये जो सेकेंड पॉइंट है वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कंपनी को ये भी देखना है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं, क्योंकि बिना प्रॉफिट के बिजनेस लॉन्ग टाइम तक मार्केट में नहीं रह सकता। इसलिए कंपनी को टाइम टू टाइम ये भी देखना है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं, और कंपनी को उसके साथ साथ टाइम टू टाइम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी स्टडी करते रहना है कि कुछ ऊपर नीचे तो कुछ हो नहीं रहा। इसलिए जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है उसके साथ साथ कंपनी प्रॉफिट कर रही है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिफ्थ जो पॉइंट है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज अ न्यू डेवलपिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इट इंडिकेट्स ट्रिपल ऑब्जेक्टिव्स ओरिएंटेड मार्केटिंग। These three objectives of marketing are satisfied to the consumer, profit of the company and protects of social interest. Satisfaction to the consumer and profit of the company are not enough. Society interest should also be protected. Therefore, at the time of preparing the design of two-wheeler or four-wheeler vehicle, every care should be taken to see that it does not pollute the environment or cigarette does not harm the health of the smoker. Product like Bonvita or mineral water may protect the personal interest, but the poor society how far may protect the personal interest, but the poor society how far do they protect the interest of the society? This question remains unanswered. In this way, social marketing concept puts stress on manufacturing such products which are profitable and protect and promote short-term and long-term interests of the consumer and society. So यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ये नया कॉन्सेप्ट इंक्लूड हुआ है, जहाँ पे कंपनी को कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड कंपनी प्रॉफिट के साथ साथ सोशल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करते रहना है। कंपनी को ये जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे कोई एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, कुछ डिफेक्ट्स तो नहीं हो रहा, वो भी कंपनी को ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऑफ बॉर्नविटा जो प्रोडक्ट है बॉर्नविटा एंड मिनरल वाटर, वो कॉमन पीपल एंड रिच पीपल को तो वो पर्सनल इंटरेस्ट मेंटेन कर रहा है, उन लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, पर पुअर पीपल है उनका पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं, वो सोचने की बात है। इसलिए कंपनी को कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड कंपनी प्रॉफिट के साथ साथ सोशल इंटरेस्ट पे भी प्रोटेक्ट रखना है। अब ये जो सोशल मार्केट कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं रीड करूंगा वो भी हम देख लेंगे। द मार्केटर हैज टू फुलफिल द कंज्यूमर डिमांड एंड ऑल्सो टू कंट्रीब्यूट द enrichment of quality of life. The marketer shall not offer a product to consumer if it is not in the
in the best interest of the consumer. The market will offer long-run consumer and public welfare. The integrated marketing plan and program shall duly consider consumer citizen want. Okay guys, so ये थी डिफरेंट कॉन्सेप्ट मार्केट के बारे में. आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, आपको पूरा ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो मार्केटिंग के थे वो क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई टॉपिक या कोई स्टूडेंट्स, तो ये थी डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है. वीडियो को ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टिल द एंड.